artificial intelligence. So next is artificial intelligence. Okay, this artificially intelligence, this is the regulation and application. What are the regulation? So EU is developing the AI Act, which is world first comprehensive AI law. So AI law कौन डेवलप कर रहा है? यूरोपियन यूनियन. So this is a European and Union. So European Union is developing the AI laws and this is the first comprehensive law. And न्यू दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली हमारे यहाँ है इंडिया में. So this is declaration adoption of the global partnership on AI. So this is declaration for the global partnership of the AI and a multi-stakeholder initiative which is gap between theory and the practice of AI. So cutting edge research, AI based priorities are also there. So India AI is also there. India Artificial Intelligence project India AI. So this India AI has been also launched as a one-stop digital platform for the AI development. It is for the AI development and Hiroshima AI process. So one more thing is there, that is Hiroshima AI process, and that is developing with G7 plus OECD. Okay, G7 and OECD. So Hiroshima AI product. So one more thing is Hiroshima and AI, Hiroshima AI process. Okay, and this process is developed with the OECD plus G7 group and the OECD, and this is about the Hiroshima AI process. Okay, OECD and the G7. So world first artificial intelligence safety place to work together for the risk of the AI. दिस इज़ ब्लैंचली डिक्लेरेशन, इससे ध्यान रखना है आपको. ब्लैंचली डिक्लेरेशन. ओके, ब्लैंचली डिक्लेरेशन विच इज़ रिलेटेड टू द AI एंड दिस इज़ टुगेदर टू असेस द रिस्क ऑफ द AI. सो यहाँ पर 28 कंट्रीज हैज़ साइन दिस विद द EU and India is also part of it, and India is also part of the Blanchely declaration. So Blanchely declaration, and this is India is also part of it. Okay, and this is for the artificial intelligence, and European Union is the first comprehensive AI law जो लाया है, and Hiroshima AI process ये G7 and OECD. So G7 plus OECD both are working with the Hiroshima project. Now next is what is artificial intelligence. So it is mechanism to perform tasks that would normally require human intelligence like learning, problem solving, decision making. तो यहाँ decision making आएगा, problem solving आएगा और learning आएगा. So okay, so this is the कुछ टास्क होती हैं जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से होती हैं. दिस इज़ विद द ह्यूमन इंटेलिजेंस. वी नीड ए ह्यूमन इंटेलिजेंस. सो दैट्स वाई generate the AI, and AI is a open AI. First is open AI, that is chat GPT and Google Bard. तो आपको नाम ध्यान रखना है. गूगल ने डेवलप किया है बार्ड. चैट GPT, दैट इज़ ओपन AI, चैट GPT, गूगल बार्ड एंड सोरा भी होता है. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो AI. एंड डेल इज़ ऑल्सो AI, डेल E. एंड क्रूत्रिम इज़ ए इंडिया का AI मॉडल है जिसको बोलते हैं क्रूतरिम किसका है? दैट इज़ इंडिया का AI मॉडल है. दिस इज़ ए इंडिया AI मॉडल, नेम इज़ क्रूत्रिम. एंड टू क्रिएट ए हाई क्वालिटी कंटेंट एंड टेक्स्ट एंड स्पीच, दैट इज़ क्रूत्रिम. और लीवरेजिंग द एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसका एक मतलब जो AI होता है इसका पहला है कि नेचुरल लैंग्वेज डेवलप करना, नेचुरल लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट. ओके, सेकंड है कि जीपीटी क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं. इसमें प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होते हैं. तो यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है. व्हाट इज़ देयर? दैट इज़ द लार्ज एंड लैंग्वेज मॉडल. दिस इज़ ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल. एंड ट्रांसफॉर्मर इज़ ए टू न्यूट्रल नेटवर्क्स होते हैं जिसमें एनकोडर होगा. एक तो होता है एनकोडर और एक होता है इसमें डीकोडर. ओके, एक होता है एनकोडर, डीकोडर, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. कैसा होता है? दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन.
and this is multimodal AI combine the power of multiple inputs and solving the complex problems. So यहाँ पे एक होता है फ्रंटियर AI, हाईली कैपेबल जनरल पर्पस ऑफ द AI मॉडल. तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि मशीन लर्निंग होगी. ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस मशीन लर्निंग. और AI के थ्रू क्या कर सकते हैं, डीप लर्निंग. ओके, एंड मशीन लर्निंग में क्या होगा, जैसे नॉट ऑल मशीन इज़ द डीप लर्निंग. मशीन लर्निंग एक AI की मेथडोलॉजी है, सारी की सारी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग नहीं होती है. मशीन लर्निंग में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, जैसे मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम है एंड नीड टू मैनुअली सेलेक्ट द फीचर्स एंड रो डाटा एंड असाइन करेंगे कुछ मॉडल्स को, एंड कॉम्प्लेक्स लोअर डाटा वॉल्यूम्स होते हैं बहुत सारे. तो डीप लर्निंग में क्या करते हैं आप, सारी की सारी मशीन लर्निंग जो है, ऑल डीप लर्निंग इज मशीन. जितनी भी डीप लर्निंग है वो सभी क्या है, मशीन लर्निंग है. ऑल डीप लर्निंग्स आर मशीन लर्निंग. एंड कंबाइन द स्टैटिस्टिक्स. डीप लर्निंग में स्टैटिस्टिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, एंड सेल्फ लर्निंग भी की जा सकती है, फीडबैक्स होते हैं, एरर्स भी होते हैं जो फाइंड आउट करने होते हैं. तो डीप लर्निंग इज़ ए मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ वेरी हाई डाटा वॉल्यूम होता है. in place of the deep learning there is a machine learning and which is less complex and less lower data volume होता है इसका. Okay, so these two things are there, which is the machine learning and the deep learning. Now what is the application of the AI? So this is actually important for the mains purpose. So what is the application of the AI? एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है. सो फर्स्ट इज़ हेल्थ केयर में. सो इफ़ हेल्थ केयर इज़ देयर दैट मीन्स हायर क्वालिटी पेशेंट्स, क्लिनिकल रिसर्च हो पाएंगे. सो दिस इज़ फॉर द क्लिनिकल रिसर्च. ठीक है, दिस इज़ फॉर द सप्लाई चेन रेजिलियंस कर सकते हैं आप. ठीक है, एंड वर्कफोर्स ऑप्टिमाइज, डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, डिजीज़ का डायग्नोसिस भी कर सकते हैं आप. एग्रीकल्चर में क्या करेंगे आप, एग्रीकल्चर में आप इंटेलिजेंस क्रॉप प्लानिंग करेंगे. ठीक है, क्रॉप प्लानिंग एंड देन स्मार्ट फार्मिंग करेंगे. देन सेकंड वन इज़ स्मार्ट फार्मिंग करेंगे. ठीक है, देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, मार्केट बेस्ड इंटेलिजेंस होगा, डाटा ड्रिवन एग्रीकल्चर होगा. नेक्स्ट इज़ मल्टी मॉडल AI में आप बिजनेस को एनालिटिक्स करेंगे ऑन मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम, रिकॉग्नाइजिंग द इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोसेसिंग, जनरेटिंग टेक्सटुअल एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वीडियोज़ एंड ऑल दैट. नाउ अदर सेक्टर्स भी हैं जैसे इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड एक आपको ध्यान होना चाहिए युवा. तो अदर एप्लीकेशन में एक है युवा. ठीक है, UI क्या होता है, यूथ फॉर उन्नति. नेम है यूथ फॉर उन्नति. So this youth for unnati and the vikas with AI, youth for unnati and the vikas with AI, it is defense of Agni D. So Agni D is for the surveillance of the developing self driving cars होती हैं, traffic management होता है. So multiple applications are there of the AI. So you can develop the market based intelligence and data driven agriculture innovations also there. So A for AI, agriculture for AI, smart farming, intelligence crop planning. Okay, so multiple applications are there. Now next topic है आपका about the neural network. So what do you understand about the neural network? So neural network is a machine learning program. ये क्या होता है, मशीन लर्निंग होता है. मशीन लर्निंग प्रोग्राम और ए मॉडल दैट मेक्स द डिसीजन इन ए मैनर सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन. सो जो ह्यूमन ब्रेन हमारा डिसीजंस लेता है वैसे ही न्यूरल नेटवर्क होता है. सो दिस इज़ फॉर द ह्यूमन ब्रेन कैसे डिसीजन लेता है, दैट इज़ द न्यूरल नेटवर्क विल टेक द सेम टाइप ऑफ डिसीजंस. सो एवरी न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ नोड्स. यहाँ पे क्या होते हैं, सम लेयर्स ऑफ द नोड्स होते हैं, एंड दिस नोड्स आर द आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं. दिस इज़ द आर्टिफिशियल एंड न्यूरॉन्स. ओके, दिस आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आर इनपुट लेयर्स होंगी एंड हिडन लेयर्स भी होंगी. So neural networks are the sometimes called the artificial neural networks, and this is different type of the neural networks like the forward neural network, multi-layer perceptors,
ल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स है, दिस इज़ टू सिमिलर टाइप ऑफ दैट ब्रेन, हाउ ब्रेन इज़ वर्किंग एंड दिस विल ऑल्सो वर्क काइंड ऑफ दैट। तो इससे आप बहुत सी फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स है, अनसर्टेनिटीज़ हैं, उसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एक एआई के बारे में। ठीक है, अब देखिए आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे डीप फेक बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीप फेक्स। डीप फेक में क्या होता है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी होती है, जैसे फेस को आप स्वैपिंग करना और फेशियल मैनिपुलेशन कर लिया जाता है। तो मैनिपुलेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, मैनिपुलेशन किसका हो जाता है, फेशियल का, मतलब आपके फेस को ही मैनिपुलेट कर देंगे, फेस की स्वैपिंग कर देंगे, दे आर स्वैपिंग योर फेस। ओके, सो ये इस तरीके से डीप फेक किया जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी टू सोशल मीडिया में इंटरमीडिएरीज टू आइडेंटिफाई द मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक सोशल मीडिया में एक इंटरमीडिएरीज डाली है, जिसमें कहा है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक से इसको किस तरीके से इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। तो डीप फेक क्या होता है, इट इज़ ए वीडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो जाएगा और कोई इमेज होती है, ठीक है, दैट हैज़ बीन एडिटेड। ये एक एडिटेड इमेज होती है, दिस इज़ ए एडिटेड इमेज एंड यूजिंग एन एल्गोरिदम, और इसमें कोई एल्गोरिदम यूज़ में लिया जाता है, एल्गोरिदम। ओके, दिस इज़ ए एल्गोरिदम टू रिप्लेस द पर्सन, टू रिप्लेस द पर्सन, एक पर्सन को रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, एंड दिस इज़ वीडियो और इमेज एंड इन ए वे दैट मेक्स द वीडियो लुक ऑथेंटिक, और इससे क्या किया जाता है कि वो वीडियो ऑथेंटिक दिखना चाहिए, ऐसा किया जाता है। तो इट कैन बी ए इमिटेशन ऑफ द फेस, बॉडी, साउंड, स्पीच और एनवायरनमेंट। इसमें आपके फेस का यूज़ लिया जाएगा, बॉडी का, साउंड का, स्पीच का, या फिर आपके एनवायरनमेंट का, और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है दैट कैन बी मैनिपुलेटेड। सो यूजिंग एज ए फॉर्म ऑफ एआई, वो एआई का यूज़ लेते हैं एंड दैट कैन डू एनीथिंग विद दैट। सो डीप लर्निंग टू मेक द इमेजेस ऑफ फेक इवेंट्स एंड इवेंट्स दैट हैवंट हैपेंड, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है वैसी इमेजेस बना दी जाएंगी। सो डीप लर्निंग इज़ ए मशीन लर्निंग विच इज़ यूजिंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें एक न्यूरल नेटवर्क होता है, ये न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली रियल नेटवर्क। तो आपके ह्यूमन ब्रेन के जो डाटाज होंगे वही गायब कर दिए जाते हैं इसमें। इससे प्रॉब्लम क्या आती है, एथिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है बहुत सारी, जैसे कि ये डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग होती है एक, डीप लर्निंग एंड द एआई, और इसमें एक फ़ोटोशॉपिंग, क्रिएट द इमेज इवेंट, इसमें कुछ फ़ोटोशॉपिंग्स होंगी और वो आपकी एक फ़ेक इमेजेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स होते हैं कुछ, जैसे कि मशीन लर्निंग है, इंटरप्लेट टू क्रिएट ए वीडियोज़ एंड दिस इज़ कंसिस्ट ऑफ जनरेटर्स एंड द डिस्क्रिमिनेटर्स। Generators take the initial data to create new images and discriminators are evaluate the content for realism and does further refinement. So a variational auto encoders होते हैं इनके पास, कुछ encoders होते हैं, कुछ decoders भी होते हैं, तो ये एकदम variables टाइप के होते हैं। So artificial neural networks enabling a versatile face swap model and this is a face swap model, face swap model एंड रेगुलेटरी मेजर्स एप्लीकेशन टू डीप फेक्स में क्या है, तो इसके लिए कुछ लीगल प्रोविजंस लाए गए हैं, सम लीगल प्रोविजंस आर देयर, सम लीगल प्रोविजंस आर देयर इन इंडिया, नो स्पेसिफिक लीगल प्रोविज़न अगेंस्ट द डीप फेक। अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, बट एक है कि सेक्शन 66E एंड सेक्शन 66D, सेक्शन E एंड D of the IT Act of 2000 and the Copyright Act of, IT Act हो गया, और एक है Copyright Act, एक है Copyright Act of 1957. Global measures against the deepfake. Google announced the tool for the watermarking to identify the generated content. तो यहाँ पे ग्लोबल मेजर लिया गया है डीपफेक के लिए, जिसमें गूगल ने एक टूल अराउंड किया है जिसमें वाटर मार्किंग होती है, मतलब अगर आप किसी ने भी आपकी गलत तरीके से तस्वीर यूज़ में ली है तो आपकी वाटर मार्किंग हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। एंड दिस वाटर मार्किंग इज़ फॉर आइडेंटिफाई द जनरेटेड कंटेंट, ठीक है, आपने उस कंटेंट को कहाँ से जनरेट किया है उसके लिए एक वाटर मार्किंग का उपयोग किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डीप फेक। तो डीप फेक समझ में आ गया आपको।